اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کلاس 12 کا آبجیکٹو کوسچن، جو کہ میں نے بہت محنت سے تیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس میں 30 کوسچن تھے اور اس میں 80 کوسچن ہے، یعنی 80 کوسچن ہے جو سارے آبجیکٹو ہیں اور دونوں کتاب سے میں نے تیار کیا ہے، آپ کی گلستان ادب سے اور خیابان اردو دونوں سے۔ تو اس میں کتنے کوسچن ہیں؟ 80 کوسچن ہیں۔ آپ ایگزام سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس کوسچن کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اور پوری ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اچھے سے دیکھیں اور ایک ایک کوسچن کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، یاد کر لیں، کیونکہ ایگزام میں یہی سب کوسچن آتے ہیں، بار بار یہ سب کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتی ہوں۔ سوال ایک ہے کہ غالب کے اردو خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ اب آپ کے کلاس میں 2 غالب کے خطوط دیے گئے ہیں۔ ایک غالب نے لکھا ہے اپنے عزیز شاگرد منشی ہرگوپال تفتہ کو، ایک خط ہے، اور آپ کا دوسرا خط ہے اس میں، اور دوسرا خط منشی نبی بخش حقیر کے نام لکھا ہے، جو ان کے دوست ہیں۔ آپ کے بک میں 2 خطوط دیے گئے ہیں مرزا غالب کے، جس میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اپنے شاگرد کو، اور ان کے شاگرد کون ہے؟ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام، اور دوسرا خط اپنے دوست کو لکھا ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام۔ یہ سب بات آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ان کی جو کتاب ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ 2 خطوط کے مجموعے کا آپ کو نام بتانا ہے، عود ہند اور ارد معلّہ، ان کے کیا ہے؟ خطوط کے مجموعے کا نام ہے، جس میں ان کے بہت سارے خطوط ہیں۔ سوال 2 ہے، کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ ٹھیک ہے، مراسلہ یعنی چٹھی اور مکالمہ یعنی بات چیت۔ تو کس نے کیا ہے؟ چٹھی کو بات چیت کا ذریعہ بنا دیا، تو مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میں نے اس میں 4 آپشن نہیں لکھے ہیں، کیونکہ میں خود سے ٹائپ کرتی ہوں، پھر گھر کے سارے کام بھی کرتی ہوں، پھر ویڈیو بنانا، اپلوڈ کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کیا ہے، اس کو ٹائپ کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، تو میں نے 4 آپشن نہیں لکھے ہیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے بس وہی لکھا ہے۔ تو مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا غالب نے خطوط ایسے لکھے، اس انداز سے خط لکھے کہ انہوں نے کیا ہے؟ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی چٹھی کو بات چیت کا ذریعہ بنا دیا، یعنی خط کو کیا ہے؟ بات چیت کا ذریعہ بنا دیا۔ سوال 3 ہے، صاحبان عالی شان سے کیا مراد ہے؟ تو انگریزی حاکم، انگریزی جو حاکم ہوتے تھے اس وقت، کیونکہ اس وقت انگریز کا زمانہ تھا اور انگریز کی حکومت تھی، تو جو انگریز حاکم ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ صاحبان عالی شان۔ سوال 4 ہے، خواجی کس داستان کا کردار ہے؟ آپ کے بک میں ہے خواجی ایک مطالعہ، کس نے لکھی ہے؟ سید احتشام حسین نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواجی کس داستان کا کردار ہے؟ تو خواجی کیا؟ فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ فسانہ آزاد کیا؟ ایک داستان ہے اور خواجی اس کا کردار ہے۔ تو سید احتشام حسین نے خواجی پر ایک مطالعہ لکھا ہے، آپ کی جو بک میں ہے۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو فسانہ آزاد ایک داستان ہے، اور یہ کس کی تصنیف ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصنیف ہے۔ سوال 6 دیکھ لیتے ہیں، خواجی ایک مطالعہ کس نے لکھی ہے؟ احتشام حسین نے لکھی ہے۔ آپ کے بک میں جو خواجی ایک مطالعہ ایک چیپٹر ہے، کس نے لکھی ہے؟ احتشام حسین نے لکھی ہے۔ اور خواجی کیا ہے؟ ایک کردار ہے، فسانہ آزاد کا کردار ہے، اور فسانہ آزاد کیا ہے؟ داستان ہے، ٹھیک ہے۔ خواجی ایک مطالعہ کس نے لکھی ہے؟ احتشام حسین نے لکھی ہے۔ بود و باش کے کیا معنی ہیں؟ بود و باش کے معنی ہوتا ہے رہن سہن، یہ کوشچن بار بار آتا ہے، بود و باش کے کیا معنی ہیں؟ تو بود و باش کے معنی رہن سہن۔ علامتی افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو علامتی افسانے کا آغاز 1960 کے لگ بھگ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ آپ کے اس میں ہے امراؤ جان ادا، کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ہادی رسوا کی۔ امراؤ جان ادا کیا ہے؟ ایک ناول ہے، اور کس نے لکھی ہے؟ مرزا ہادی رسوا نے لکھی ہے۔ لیکن آپ کے بک میں کیا ہے؟ امراؤ جان ادا ایک مضمون ہے، اس کا مطالعہ کیا گیا، تنقیدی مطالعہ کہ کیسا لکھا گیا ہے۔ تو آپ کے بک میں جو امراؤ جان ادا کا تنقیدی مطالعہ کس نے کیا ہے؟ خورشید الاسلام نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ افسانے لمحے کے مصنف کا نام بتائیں۔ آپ کے بک میں افسانہ لمحہ ہے، کس نے لکھا ہے؟ بلونت سنگھ نے لکھا ہے۔ افسانے لمحے میں بلونت سنگھ کیا بتانا چاہتا ہے؟
तो वो बताना चाहता है कि एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, अफसाने लम्हे में बलवंत सिंह क्या बताना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं कि एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। अफसाना लम्हे के मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना लम्हे का मरकजी किरदार कौन है? उमाकांत है। कौन है? उमाकांत है। क़रतुलैन हैदर के वालिद का क्या नाम था? तो क़रतुलैन हैदर के वालिद का नाम सज्जाद हैदर यल्दरिम था। क्या था? सज्जाद हैदर यल्दरिम था। और उनकी वालदा का नाम नज़र सज्जाद हैदर था। और उनकी वालदा का नाम क्या था? नज़र सज्जाद हैदर था। और दोनों क्या है? मारूफ अफसाना निगार थे। और क़रतुलैन हैदर की जो अफसाना है आपके बुक में, वो कौन सा है? फोटोग्राफर। क़रतुलैन हैदर का जो अफसाना है आपके बुक में, वो कौन सा है? फोटोग्राफर। क़रतुलैन हैदर ने जो अफसाना लिखा उसका नाम क्या है? फोटोग्राफर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोग्राफर किसने लिखा है? तो आप लिख देंगे क़रतुलैन हैदर ने लिखा है। तो एक एक क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता रही हूँ, इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आप स्किप किए बगैर वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। और आपसे एक गुजारिश और करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खूब दबाकर शेयर करें, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क़रतुलैन हैदर के अफसानों का मजमुआ सितारों के आगे जहां और भी है कब शाया हुआ? तो 1947 ईस्वी में शाया हुआ। क़रतुलैन हैदर का क्या है? अफसाने का मजमुआ है जिसका नाम क्या है? सितारों से आगे, जिसका नाम क्या है? सितारों के आगे जहां और भी है। कब शाया हुआ? 1947 ईस्वी में। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? इसमें 2 क्वेश्चन है। 1797 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? 1797 में। कहाँ पैदा हुए? आगरा में। अफसाना बजूका प्रेमचंद के किस नावल से मुतासिर होकर लिखा गया है? अफसाना बजूका है जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो प्रेमचंद के किस नावल से मुतासिर होकर लिखा गया? तो अफसाना बजूका प्रेमचंद की एक नावल है गोदान, उसी से मुतासिर होकर लिखा गया है। और होरी क्या है? गोदान का एक किरदार है। तो होरी कौन है? तो जवाब लिखेंगे होरी मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। और उसी किरदार को लेकर सुरेंद्र प्रकाश ने एक अफसाना लिखा जिसका नाम है बजूका। फौजी के किरदार से मुतालिक सही जवाब कौन सा है? लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 तरह का बात लिखा जाएगा, लेकिन फौजी के किरदार से जो मुतालिक सही जवाब है वो क्या है? लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत है। फौजी क्या है? लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत है। सज्जाद ज़हीर के नसरी नज़मों के मजमुआ का क्या नाम है? सज्जाद ज़हीर के नसरी नज़मों के मजमुआ का नाम क्या है? पिघला नीलम। जज्बी का असल नाम क्या है? मोइन अहसन जज्बी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको सही जवाब लिखना है। तो सही जवाब क्या होगा? मोइन अहसन जज्बी। उठी गुलरंग दरीचों से सेहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। ये शेर किसका है? तो ये शेर जानिसार अख्तर का है। ठीक है, आपको याद रखना है। नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए? अम्बाला में पैदा हुए। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नज़म क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये बहुत याद रखिएगा कि नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। होरी कौन है? होरी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। अफसाना बजूका के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना बजूका किसने लिखी है? सुरेंद्र प्रकाश ने लिखी है। सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? तो सुरेंद्र प्रकाश का नाम है सुरेंद्र कुमार ओबराय। ठीक है, सुरेंद्र कुमार ओबराय। अफसाना सकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना सकून के नींद के मुसन्निफ इकबाल मजीद हैं। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो शफी जावेद का आबाई वतन गया है। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर किस नाम से जाने जाते हैं? तो बन्ने भाई के नाम से जाने जाते हैं। सज्जाद ज़हीर को बाहर की दुनिया में लोग किस नाम से जानते हैं? बन्ने भाई के नाम से जानते हैं। पंजाब कमेटी का इजलास कब और कहाँ हुआ? पंजाब कमेटी का इजलास 1937 में हुआ। और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि पंजाब कमेटी का इजलास कब हुआ? तो 1937 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। तो
इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरी देखें और स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब याद हो जाए। इस पूरे सवाल को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसमें से आपको 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ें। इससे पहले मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर दिए हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, सिर्फ 2 दिन पहले ही बनाया है। सवाल 3 खुद नविश्त या आप बीती का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन भी बार बार आते हैं। खुद नविश्त या आप बीती का क्या मतलब है, यानी अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना। खुद नविश्त या आप बीती में अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी जाती है, अपनी ज़िंदगी का वाक़या लिखा जाता है। और सवाने उम्री में किसी दूसरे की ज़िंदगी की कहानी या वाक़या लिखा जाता है। अख्तरुल ईमान के आप बीती का क्या नाम है। तो इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान ने अपनी आप बीती लिखी है, यानी अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है, आप बीती। तो इसका नाम क्या है, इस आबाद खराबे में। जौहर माने क्या होता है। जौहर माने होता है तालाब। कृष्णचंद्र के पहले अफसानों का मजमुआ कौन सा है। तो तुलसुम ख्याल। कृष्णचंद्र का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है तुलसुम ख्याल। सबक पौधे क्या है और किसने लिखा है। तो सबक पौधे क्या है, रपूर ताज है। किसने लिखा, कृष्णचंद्र ने लिखा। आपको ये भी आ सकता है कि सबक पौधे क्या है, अफसाना है, नावल है, तनकीद है, मजमून है, इंशाइया है, रपूताज है। तो सबक पौधे क्या है, रपूर ताज है। और किसने लिखी है, कृष्णचंद्र ने लिखी है। इंशाइया मच्छर किसकी तसनीफ है। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है। और ये क्या है, एक इंशाइया है। ठीक है, मच्छर क्या है, इंशाइया है। और किसने लिखी है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो की भी व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब दबाकर शेयर करें अपने दोस्तों को। 36 है, गालिब जदीद शुरा की महफिल में के मुसन्निफ का नाम क्या है। किसने लिखा है, गालिब जदीद शुरा के मजलिस में, कन्हैया लाल कपूर ने। कृष्णचंद्र के रपूरतास का उन्वान बताइए। पौधे, अभी हमने आपको पढ़ाया कि रपूरतास किसने लिखा, तो कृष्णचंद्र ने लिखा है। और कृष्णचंद्र के रपूरतास का उन्वान क्या है, तो पौधे है। फौजी और आज़ाद उर्दू के किस मशहूर तसनीफ के किरदार हैं। फौजी और आज़ाद उर्दू के किस मशहूर तसनीफ के किरदार हैं। तो फसाना आज़ाद के, फसाना आज़ाद के दास्तान है। ठीक है, और फसाना आज़ाद किसने लिखी है, तो फसाना आज़ाद पंडित रतननाथ सरशान ने लिखी है। नज़म गौर गरीबा के शायर कौन है, तो नज़म तबा तबाई। नज़म गौर गरीबा किस ज़बान से तर्जुमा की गई है, तो अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जुमा की गई है। ख्वाजा हसन नज़ामी अदब की किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं, तो इंशाइया के लिए मशहूर हैं। यहूदी की लड़की क्या है और किसकी तसनीफ़ है, तो यहूदी की लड़की ड्रामा है और किसकी तसनीफ़ है, आगा हश्र काश्मीरी की। अफसाना जन्मदिन के मुसन्निफ कौन है, तो वकील मोहम्मद बशीर। रूह आर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, किसकी तसनीफ़ है, इकबाल की। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, तो 1800 ईस्वी में कायम हुआ। क्लर्क के मौत के मुसन्निफ कौन है, चेखफ है। और क्लर्क की मौत जो कहानी है वो रूसी कहानी थी, उसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। और उर्दू में किसने तर्जुमा किया है, चेखफ ने किया है। कहानी क्लर्क की मौत के मरकजी किरदार का नाम बताइए, तो चेरू याकूफ। वकील मोहम्मद बशीर की कहानी किस ज़बान में लिखी गई है, मलयालम में। वकील मोहम्मद बशीर की कहानी किस ज़बान में लिखी गई है, मलयालम में। यहाँ क्या है, प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ क्या है, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ होगा कहानी। ठीक है। पितरस बुखारी के इंशाइयों मजमूआ का क्या नाम है, मुजामिन पितरस। दक्कन का कौन सा मशहूर शायर पहली बार दिल्ली आया था, तो वली। रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन है, इंशा अल्लाह खां इंशा। बाब बहार के मुसन्निफ कौन है, मीर अमन। सबक रोशनाई में सज्जाद जहीर ने किस कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है। आपने सबक रोशनाई पढ़ा है, उसमें सज्जाद जहीर ने किस कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है, पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है। तरक्की पसंद अदबी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किस सन में हुआ, तो 1936 ईस्वी में हुआ। दिल्ली का दबिस्तान शायरी के मुसन्निफ कौन है, नूरुल हसन हाशिमी। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नज़म ज़िंदगी से डरते हो
किसकी तसनीफ़ है? यहाँ क्या होगा? डरते हो। यहाँ क्या होगा? डरते हो। नज़म ज़िंदगी से डरते हो किसकी तसनीफ़ है? नून मीन राशिद। उर्दू ज़बान का असल माखज़ कौन सी बोली है? ब्रिज भाषा। ठीक है। उर्दू सिंधी ज़बान से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। ठीक है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे क्या हो? हम काफिया हो। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गया या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया कि मतला किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। मरहूम की याद में किसका मरसिया है? पितरस बुखारी का। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो रोशनाई जो सबक आपने पढ़ा है वो सज्जाद ज़हीर की बुक है, उसका कुछ हिस्सा आपकी किताब में दिया गया है। तो सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो इकबाल से होती है। किस शायर को जदीद बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? नज़म होगा। जदीद नज़म बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है। किस शायर को जदीद नज़म बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को। क्लर्क की मौत का उर्दू तर्जुमा किसने किया? चेखफ ने किया। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 ईस्वी में मिला। असारुस सनादिद किसकी तसनीफ़ है? तो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है। उर्दू किस बोली से निकली है? उर्दू खड़ी बोली से निकली है। रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? तो रोशनाई क्या? सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।